So let's begin with today's session. This is coming in the chapter number 3, motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन के अंदर जो अभी एक नया मोशन हम देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट द some examples of projectile motion. A batsman hitting the six. Batsman hitting the six. A ball is kicked. Football is kicked. A stone is thrown, making some angle. क्या चल रहा है? कुछ मत निकालो यार. एक भी मोशन जहां पर the object is thrown, a stone is thrown, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं. एंड any projectile motion if we consider, तो it will follow this kind of trajectory जिसे पैराबोला कहते हैं. This is called as the parabolic trajectory. पैराबोला, ठीक है. That object, that very object which is traveling, it's called as the projectile. And उसका जो मोशन होता है उसको कहते हैं projectile motion. Is this clear to you all? We call this as projectile motion. ठीक है. Suppose this is x axis and this is y axis. So जिस भी velocity से उसे फेंका जाता है यहां से, it's making some angle, of course, isn't it? Now this is u, is called as velocity of projection. We call this as velocity of projection. ठीक है. Now this velocity is making some angle. It's making some angle. Let me call this angle, कभी ये angle अल्फा से बोला जाता है या थीटा भी कहा जाता है इसको. अल्फा, थीटा, whatever. कई बार इसको अल्फा भी कहते हैं. This theta or alpha is called as angle of projection. We call this as angle of projection. Okay, then it will cover certain maximum horizontal distance. It will cover certain maximum horizontal distance. This maximum horizontal distance is called as the range of the projectile. We call this as range of projectile. Maximum horizontal distance that it covers. And then there is one more thing which we call as the maximum height that it reaches during its motion. This is called as maximum height. We denote it by h. So we are going to find out the expression for all these things. इन सब चीजों के लिए हम expression find out करने वाले हैं. Okay? So to start with, now यहाँ पे we say that the projectile is starting with point O. This is the point of projection. यहाँ से उसको project किया गया है. We know that the projectile will always travel along this kind of path. So actually the projectile motion is the combination of two types of motions. Projectile motion. Can we close the door, please? Projectile motion is the combination of, it is combination of, number one, यहां से जब पार्टिकल फेंका जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा. द फर्स्ट कंपोनेंट इज u cos alpha, this one, horizontal component, and the vertical component is u sin alpha. ठीक है. This is u cos alpha and this is u sin alpha. This is the component along x direction. I'll call this as ux, and this is the component along y direction. I'll call this as uy. प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम गौर से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस. उसका जो वर्टिकल मोशन रहता है उसको ऊपर जाना है और फिर वापस आना है,
तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एक्चुअली द मोशन अंडर ग्रेविटी, कि कोई पत्थर को आप ऊपर फेंको फिर वो नीचे आ जाता है। और उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इज ऑलवेज एक्टिंग, और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, व्हिच इज द फर्स्ट मोशन, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along y direction, along y direction. Is that clear? And second is the uniform motion. Uniform motion मतलब acceleration 0 along x direction. Is this clear to all? ठीक है, ये दोनों मोशंस होते हैं एंड वी विल बी एनालाइजिंग बोथ दीज मोशंस साइमल्टेनियसली। तो चलिए मानते हैं कि वो O से शुरू हो चुका है एट t इज इक्वल टू 0, और जैसे ही वो एट पॉइंट P पहुंच गया, P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। x, y का मतलब क्या है जी? मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है y, और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इट हैज कवर्ड सो फार इज x। इज दिस क्लियर टू ऑल? और यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा है t। तो आई विल एनालाइज दिस मोशन फ्रॉम O टू P विद द हेल्प ऑफ बोथ द डायरेक्शनल मोशंस। दोनों डायरेक्शंस की मैं बात करूंगा यहां पर। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो आई विल कंसीडर इट्स मोशन फ्रॉम O टू P। पहले मैं बात करूंगा उसके वर्टिकल मोशन की। आई विल टॉक अबाउट इट्स वर्टिकल मोशन। So along the vertical motion, I'll use the formula S is equal to ut plus half at square. सही है? S is equal to ut. Now what is the displacement in the vertically upward direction? S is equal to plus y. Initial velocity, अब मैं vertical motion है तो इसको sy बोलूंगा, ay बोलूंगा and uy बोलूंगा, and this is ay actually, acceleration in the y direction. So what is the displacement in the vertically y direction? Plus y. Sy is y. What is the vertical component of velocity? Initial velocity is u sine alpha. Is this clear to you all? And what is the acceleration along the y direction? तो ये रहा acceleration along the y direction. It is actually minus g. समझ में आ गई बात? So what is this going to give me? Y is equal to u sine alpha into t minus half g t square. यही चीज अगर मैं O to P कंसिडर कर दूं, but in the horizontal direction, if I consider this in the horizontal direction, तो horizontal direction में होता है भाई distance is equal to velocity into time, करेक्ट ना? डिस्टेंस क्या है यहां से वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इट इज इक्वल टू x. व्हाट इज द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन? इट इज ux और इट इज u cos alpha. And what is the time there? t. So what basically what is t is equal to x upon u cos alpha. और ये दोनों मोशन में जो टाइम है वो सेम है, क्योंकि यहां से वहां पर जाने के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी उसने टाइम t ही लिया है और वर्टिकल मोशन के लिए भी उसने टाइम t ही लिया है. सो t इज सेम देयर. सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर t हियर. t के लिए अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आई विल गेट देयर? दिस विल गिव मी, बोलिए. देयरफॉर दिस विल बिकम y इज इक्वल टू ये है u sin alpha into t, but what is t? x upon u cos alpha, okay, minus half g t square, x upon u cos alpha का स्क्वायर. और इस तरह से मुझे मिल जाता है y is equal to u gets cancelled and this is x tan alpha minus half g x square upon u square cos square alpha. ये क्या है? This is a very important equation and we call this equation as equation of trajectory. What do we call this as? Equation of trajectory. Any doubts about this? We call this as equation of trajectory. Well, this was the first derivation of this. इसका first derivation था ये. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर मैं दो पॉइंट्स की, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ए, एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, पॉइंट बी. हाईएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पे, लेट मी टॉक अबाउट दिस. तो यहां पर अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं,
what will happen at the highest point? अगर वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करें, if I'm talking about the vertical motion, तो वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी पहले ज्यादा होता है, फिर कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, isn't it? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो भी वैसे ही होगा. अभी इतना है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आगे जाने के बाद ये और कम हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पर जाने के बाद ये और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, और इधर आता है, जीरो हो जाता है. सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो. उसके दूसरी तरफ उतरते समय वो दोबारा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और यहाँ पर आके उतना ही होता है जो जितना वो शुरुआत में था, लेकिन रिवर्स होता है वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? क्यों होता है ऐसे? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन किंतु परंतु ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको रोकने वाला, कम करने वाला, खींचने वाला, पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतना ही रहेगा. एट एवरी पॉइंट इट विल बी सेम. सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा. आप कहीं भी देखिए वो कंपोनेंट उतना ही रहेगा. So at any point if you see this component is not going to change. क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला, पीछे खींचने वाला कोई नहीं है. Is that okay? Am I clear to you all? ठीक है. So let me analyze this OA portion का motion along O to A. So I'll talk about the motion from O to A. O से लेकर A तक उसका मोशन हम कंसिडर करेंगे. अच्छा, बाय द वे और एक चीज जो मुझे आपको यहां पर बताना है कि इस कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर ऊपर फेंकते हो और बाद में वो नीचे आ जाता है, समझिए कि नीचे आते समय भी उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना, जस्ट लाइक व्हाट आई एक्सप्लेन यू हियर, इजंट इट? अच्छा, उसको ऊपर जाने के लिए अगर 2 सेकंड लगते हैं तो नीचे आने के लिए भी 2 ही सेकंड लग जाएंगे, एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन इज t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स. यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट. सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. अगर हम यहाँ की बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट होता है, लेट मी कॉल दिस एज TA, एंड टाइम ऑफ डिसेंट होता है जिसे हम कहेंगे TD, एंड वी नो दैट TA इज इक्वल टू TD एंड देयरफॉर द टोटल टाइम इज इक्वल टू TA प्लस TD. ऐसा होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ लेट मी कंसिडर इट्स मोशन फ्रॉम O to A. I'll consider its along vertical direction. हम उसका वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करेंगे फ्रॉम O to A in the vertical direction. So can you tell me the equation which governs this? इसका final, so can I say Vy is equal to Uy, V is equal to U plus AT. So Vy is the final velocity in the y direction, and this Vy is equal to 0. Initial velocity in the y direction is Uy, and what is that? Uy is equal to U sin alpha. Vy is equal to 0. Uy is equal to U sin alpha. Acceleration in the y direction वो तो उतना ही रहेगा हमेशा -g, and time is, I'll call this as TA. T is equal to TA ना, और TA is equal to T बोल दूंगा मैं. Is that fine? तो यहाँ का अगर ये टाइम T है, then this total time will be 2T. Is that clear? Let me just substitute in this equation. What am I going to get there? This will become 0 is equal to U sin alpha minus G times T, correct? Isn't it? तो ये GT उधर चला जाएगा. So what is GT is equal to U sin alpha, and therefore what is T is equal to TA is equal to TD is equal to U sin alpha upon G, and therefore total time is equal to 2T, that is equal to total time is equal to 2T, है ना? So that will become 2U sin alpha upon G. Now this is an expression which we call as the time of flight. हम इसको क्या कहते हैं? Time of flight. कितनी देर के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में है, हवा में है, वो हमको इससे पता चल जाता है. Is that clear to all? समझ में आ गया सबको? Okay. So this is called as time of flight. 2U sin alpha upon G. Any doubts about that? ठीक है? So this was the second derivation, time of flight. तीसरा देखने जा रहे हैं अभी हम. Third is, I'll consider its motion from O to B. I'll consider its motion from O to B in both the directions. So I'll consider its motion from O to B
in horizontal direction. First horizontal direction, मुझे बताइए horizontal direction is uniform motion. uniform motion का फॉर्मूला होता है distance is equal to velocity into time, correct? so O to B उसको जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है t ना, कैपिटल T, करेक्ट ना? it is time of flight. Do you understand that? hello, and that distance, what is the horizontal distance is called as, देखो O से B तक जाने के लिए horizontal distance कहलाएगा कैपिटल R and time कहलाएगा कैपिटल T, isn't it? so this is capital R, the velocity, उसका velocity ux ही होगा and the time is capital T. so let me just substitute here, क्या मिल जाएगा? R is equal to what is ux? u cos alpha into t, it is 2u sin alpha upon g, correct? now what is this equal to? this is equal to u square into 2 sin alpha cos alpha upon g. so ye 2 sin alpha cos alpha is sin 2 alpha. therefore what is the expression for the range, horizontal range? it is u square sin 2 alpha upon g, u square sin 2 alpha upon g. any doubts about this? ठीक है? now one thing very interesting that we consider here कि समझो कि एक we consider the projectile motion. अगर ये एक projectile motion है जिसमें u is constant, u is constant, ठीक है? ये जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या आया था? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, सही है? तो एक पर्सन है, उसको बोला कि तुम जितने दूर हो फेंक सकते हो उतना फेंको. तो व्हाट ही डिड इज फर्स्ट ही थ्रू दिस एट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इधर गिर गया. दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो उसको लगा नहीं एंगल गलत हो गया. देन ही थ्रू इट एट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर भी वहीं पे आके गिर गया, सेम प्लेस, ठीक है? दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. देन ही थ्रू इट एट 45 डिग्री, 45 डिग्री को वो सबसे दूर चला गया, समझे? देन अगेन उसको चेंज किया गया. ये जो अभी मैंने बताया है, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड देन अगेन इट इज चेंज, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री पर वो इधर आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे किया तो वो भी उधर ही आ गया, सेम प्लेस. दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो विच इज मैक्सिमम? अल्फा इज इक्वल टू 45 इज द मैक्सिमम, अल्फा इज इक्वल टू 45 इज मैक्सिमम. इज दिस क्लियर टू ऑल? वो पता भी चलता है अपने को, यहां से हम पता कर लेते हैं. रेंज इज मैक्सिमम, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, इजंट इट? अगर u r मुझे मैक्सिमम चाहिए तो इधर का न्यूमरेटर मुझे मैक्सिमम चाहिए. न्यूमरेटर में ये जो साइन 2 अल्फा है ये मैक्सिमम चाहिए. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी साइन फंक्शन? 1. we know that sin theta and cos theta, they will always lie between -1 to +1, correct? so sin of any angle is maximum 1, लेकिन sin of what angle is 1? 90 degree. therefore what is alpha is equal to pi by 4, that is 45 degree. so जब alpha is equal to 45 degree होता है, when alpha is equal to 45 degree होता है, that implies range is the maximum range. Is this clear to all? so let me substitute this sin 2 alpha is equal to 1. so what will be the maximum range is given by r max is equal to u square upon g, u square upon g. is this clear to all? Is this clear to all? okay, this is the formula for the maximum range, and we have already found out the expression for range. is this clear? तो ये उसका स्पेशल केस है. और एक चीज अपने को यहाँ पर देखने मिलती है
कि कोई भी दो एंगल्स की जिसका एडिशन 90 डिग्री है तो उनका रेंज सेम होगा। ठीक है, कोई भी दो एंगल्स if I say alpha 1 plus alpha 2 is equal to 90 degree, then range for alpha 1 is equal to range for alpha 2. Is this clear to all? दोनों का तो यहाँ पर 30 और 60 सेम रेंज आएगा, 40 और 50 सेम रेंज आएगा, लाइक दैट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? सो दैट इज द सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की बात करनी है। लेट मी टॉक अबाउट द मैक्सिमम हाइट। अगेन द सेम डायग्राम आई विल कंसीडर, the same diagram which I would like to consider here. At point A, I want to talk about the maximum height at A. So I'll consider its vertical motion. For maximum height, which is h, I'll consider its motion from O to A along the vertical direction. I'll consider its motion from O to A in the vertical direction. तो यहाँ पर I'll use the formula S is equal to ut plus half at square. सही है? Now what is S? यहाँ से उधर जाने के लिए what is the S? Sy is equal to h. What is the initial velocity in the y direction? ये रहा यहाँ पर, it is u sin alpha, which is equal to ux. बराबर है क्या? Sorry, uy. So this is u sin alpha. Acceleration in the y direction minus g. And time जो उसको लगेगा, it is equal to half of t. Correct? Half t ना? या तो फिर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ यार, नॉट दिस वन। I'll use v square is equal to u square plus 2as. I'll use the formula v square is equal to u square plus 2as. Vy square is uy square plus 2ay into sy. Now what is Vy? At point A, the component of vertical component of velocity is 0. Uy is equal to u sin alpha. Acceleration in the y direction is minus g. And displacement in the y direction. What is the displacement? यहाँ से वहाँ जाने के लिए displacement is h. समझ में आ गई बात? सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? 0 is equal to u square sin square alpha minus 2 times g into h. तो ये उधर चला जाएगा. What is this going to become? 2gh is equal to u square sin square alpha. Or what is h is equal to? H is equal to u square sin square alpha upon 2g. Is this clear to all? ठीक है? Now this is the expression for the maximum height. Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? So these are the four. Which of the following is true regarding the projectile motion? तो पहले का आंसर इज ए, करेक्ट बोला आप लोगों ने। ये पैराबोला होता है। एनी पार्ट ऑफ दिस मोशन, अगर पैराबोला जो होता है, कोई भी आप चीज फेंकोगे तो ऐसा होता है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब अगर बॉम्ब की बात करें तो जब एरोप्लेन यहां पर होता है तब उस बॉम्ब को रिलीज किया जाता है। सो इट परफॉर्म्स दिस पार्ट ऑफ द मोशन। समझे क्या? ऐसा ही गिरता है वो, क्योंकि एरोप्लेन जाते जाते उसको गिरा देता है, तो बॉम्ब इस तरफ ऐसे जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। In case of
projectile motion, what is the angle between the velocity and acceleration at the highest point? देखिए प्रोजेक्टाइल जो होता है वो कुछ इस प्रकार चलता है ना, ऐसे, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये। यहां पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? देखो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, करेक्ट ना? एंड इट विल हैव ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट? दिस इज Vx एंड दिस इज द ओनली वेलोसिटी दैट इट हैज गॉट एट द पॉइंट। समझ में आ गया? सो दिस इज द टोटल वेलोसिटी, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, a इज इक्वल टू माइनस g, करेक्ट है? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इज दिस ओके? एट द हाईएस्ट पॉइंट, समझे? अगला पॉइंट 47th। क्या दिया है देखिए वहां पे, if the velocity is projected with an angle theta to the horizontal, then its velocity is always perpendicular to its acceleration। नहीं, जरूरी नहीं, ऑलवेज तो नहीं होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, करेक्ट ना? हाँ, बाकी हर जगह पे नहीं होता। इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो एट इट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होता, ओनली y component of velocity is zero। If its velocity makes a zero angle with the horizontal at the maximum height, velocity makes zero angle with the horizontal, yeah, this is the correct thing। क्योंकि अभी अभी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, this is the highest point, तो what is the angle made by the velocity with the horizontal? Zero। सेम क्वेश्चन पूछा ना, its velocity makes जीरो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है? जीरो, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ही है ना। सो दैट इज द आंसर। इज दिस क्लियर? ट्रिकी क्वेश्चन सही है, सारे सोचने पर मजबूर करते हैं आपको। सो दैट इज द आंसर हियर। बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद द एक्सेलरेशन, नहीं, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड देखिए यहाँ के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। अगर ये दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी है Vx एंड Vy, तो टोटल वेलोसिटी आपका रहेगा इस तरह से, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, बराबर है ना? तो इट्स मेकिंग सम एंगल, इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स। यस और नो? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए पढ़िए क्या दिया है यहाँ पे। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली in the same vertical plane from the same point, both of different speeds and different angles। जब ये दो पार्टिकल्स से साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए जाते हैं विथ सेम स्पीड एंड सेम पॉइंट, नहीं डिफरेंट स्पीड, सेम वर्टिकल प्लेन, लेकिन हर एक का स्पीड डिफरेंट है, एंड एट डिफरेंट एंगल्स विथ हॉरिजॉन्टल, द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर, the path followed by one as seen by other, it will be a straight line, it will be a straight line making a constant angle with the horizontal। is that clear? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा समझे? ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज किक्ड वर्टिकली। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है कि भाई अगर आपको वेलोसिटी से यू वेलोसिटी, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जाता है, बराबर है क्या? सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट्स द आंसर। समझे क्या? नेक्स्ट पढ़िए। द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय दिस। नाउ दिस इज, आई विल कॉल दिस एज अ स्टार प्रॉब्लम, 50th क्वेश्चन। तो क्या होगा ये? x is equal to 3060 and y is equal to, rather 2y is equal to 96t minus 9.8 t square, or I'll divide throughout by y, so this will become y is equal to
48t minus 9.8 into 2 19.6 सॉरी 9.8t 19.6 t स्क्वायर बराबर है क्या? सॉरी क्या है ये डिवाइड करने का ना 4.9 हाँ 4.9 आएगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे करेंगे फाइंड आउट? देखिए हम डेरिवेटिव्स जब बात कर रहे थे तो कुछ फॉर्मूले अब मैं यहां पर आपको रेडीमेड दे दूंगा जो कुछ दिनों तक आपको याद रखने पड़ेंगे यूज करने पड़ेंगे। जैसे व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी अलजेब्राइक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे उसको तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है ना? दैट इज वेलोसिटी। दिस इज द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी। आई रिपीट हियर, आई कॉल दिस एज अलजेब्राइक फॉर्म। अलजेब्राइक फॉर्म, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और आई कैन राइट इट इन द डिफरेंशियल फॉर्म आल्सो। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल फॉर्म? Differential form, the form which was proposed by Leibniz and Newton, derivatives वाला form। तो velocity is equal to dx by dt, it is time derivative of displacement। ठीक है, इसको हम लिमिट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिमिट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप कुछ दिनों तक इसको बस एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज वेलोसिटी। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, इसी तरह से मैं एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्म आएगा? अलजेब्राइक फॉर्म। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्चुअली हम इसको लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी ना, isn't it? तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं a is equal to change in the velocity that is dv upon change in the time is dt। समझ में आ गया? सेम डिफरेंशियल फॉर्म। और उसको लिमिट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t that is equal to dv by dt। is this clear to all? ये आपको फिलहाल ये वाले फॉर्मूले आपको एज इट इज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बाद में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। वेल कंसिडरिंग दिस फैक्ट, अगर मुझे यहां पर वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, x का पोजीशन और y का पोजीशन, सो यहां पर व्हाट विल बी ux, इट इज इक्वल टू dx by dt एंड व्हाट विल बी uy, इट इज इक्वल टू dy by dt। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये मुझे यूज करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो लेट अस डू दैट। तो कैन यू टेल मी हाउ डू आई डिफरेंशिएट? हाउ डू आई गेट दिस ux इज इक्वल टू? So how do I get this ux is equal to d by dt of x, but x is equal to 3060, and what is uy is equal to d by dt of uy, but what is uy, sorry y is equal to 4.9 t square। is that clear? डेरिवेटिव्स जो हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे थे उसको यूज करने का टाइम आ गया था। हम उसको d by dx बोल रहे थे मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में व्हाट इज द वेरिएबल? टाइम इज द वेरिएबल। टाइम इज द कांस्टेंट वेरिएबल इन फिजिक्स। तो आप मैथ्स में d by dx बोलोगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x बोलेगे, लेकिन फिजिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो k बीइंग अ कांस्टेंट, 36 इज अ कांस्टेंट, वो तो बाहर आएगा। सो क्या बनेगा यहां पर? दिस इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू 36 into d by dt of t, d by dx of x is 1 na? 1 formula 1c, formula 1c, formula 1c 1 आएगा।
सो दिस इज ux इज इक्वल टू 36, करेक्ट है। सिमिलरली ui चाहिए मुझे, ui इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस 48 इज आउट एंड दिस विल बिकम d बाई डी टी ऑफ y, sorry d by dt of t minus 4.9 is a constant, d by dt of t square. Is that understood? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या बन जाएगा बताइए? d by dt of t once again, so what will be ui is equal to 48 into 1 minus ये, yeah, this is 4.9 into 2t, सही है? So what do you get there? This will become ui, it's 48 minus 4.9, t is equal to क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, at t is equal to कुछ दिया है ना, नहीं है, चलिए तो ui is equal to 2t, t is equal to 1 आ रहा है ना रे, so let me substitute here. Now ये आएगा 9.8 into t, करेक्ट ना, दिस विल बी 9.8 into t। अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बराबर है ना। तो देखिए अब ये जो वेलोसिटीज हमने देखे हैं, आ गया, यहां पर जो शुरुआत में हमने देखा कि दिस थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा बोलो या अल्फा बोलो जो भी है, इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये शुरुआत का जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे बाद में चेंज होता जाएगा वैसे एंगल चेंज होता जाएगा, यस और नो। तो यहां पे मुझे क्या बोलना है, एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज ux इज इक्वल टू 36, व्हाट इज ui इज इक्वल टू 48 माइनस 0, दैट इज 48, सही है, करेक्ट है। तो ये है ux एंड ui, एंड उस डायग्राम को अगर हम देखें तो व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ui एंड adjacent side which is ux, but what is ui is equal to u cos alpha upon, सॉरी उल्टा हो गया, ui पहले लिखना पड़ेगा ना, u sin alpha upon u cos alpha, u gets cancel and tan theta is equal to tan, समझ में आ गया। तो इसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस, व्हाट विल बी द tan थीटा, बोलिए tan alpha is equal to u y upon ux, what is ui 48 upon ux 36, 3 sir, therefore what is tan alpha is 4/3। अब अल्फा लिखते समय इस tan को मैं उधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3, दैट इज द आंसर, tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ 4/3, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करते हैं, अगर ये है अल्फा, tan अल्फा इज अपोजिट साइड इज 4 और ये 3 है, ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, सही है ना। तो व्हाट विल बी sin अल्फा इज इक्वल टू, बिकॉज दे हैव गिवन इन sin अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड 4/5 एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, sin इनवर्स ऑफ 4/5, समझ आया। व्हाट इज द आंसर हियर, साइन इनवर्स ऑफ क्या है आंसर, A is the answer ना। Any doubts about this? I think I'll switch over to maths now, ठीक है, I'll switch over to maths। आज वो टाइम टेबल के चक्कर में थोड़ा सा लेट